मेरे जैसे लोग लॉ की फील्ड में आउटसाइडर हैं, हम जर्नलिज्म से लॉ में आए हैं और मेंटर्स देखते हैं तो एक अपने कोई सीनियर मित्र थे, उनके सानिध्य में अपन ने कानून समझने की कोशिश की। लेकिन पत्रकारिता का जो कीड़ा होता है ना, आप जिस भी प्रोफेशन में वो छूटता नहीं है। और मैंने अभी गिल साहब से भी रास्ते में कहा था आपके चरणों में बैठ के तो हम सीखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको घर पे लेने आया हूँ ताकि मेरे को रास्ते में टाइम मिल जाए। जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने करा है कि वो अपने सीनियर कॉलीग्स को यदि अपनी पुरानी सेकेंड हैंड एम्बेसडर या फिएट गाड़ी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ले जाना होता तो थोड़े लंबे रास्ते से ले जाते हैं ताकि समय ज़्यादा मिल जाए। लेकिन अब बतौर पत्रकार जब मैं गिल साहब को सुन रहा हूँ तो मैं अपने पूर्वाग्रहों या आदतों से भी मुक्त नहीं हो सकता। वकालत के पेशे के नाते वकील एक दूसरे के सामने भी खड़े होते हैं तो पक्ष विपक्ष रखने की एक परंपरा बन जाती है। तो ये जो चित्रों की बात थी, जो प्रमोद जी के साथ पहले बात हुई थी, बड़ी प्रेरणादायक बात है। और जो व्याख्या गिल साहब ने दी है चित्रों की, वो वाकई में अभूतपूर्व है। और काश उस व्याख्या के कुछ अंश उन चित्रों के साथ लिखे होते तो वो संविधान के प्रामाणिक दस्तावेज बन जाते। चित्र हैं उन पन्नों पर। और लॉ ऑफ एविडेंस भी कहता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने है, आप में से कई सारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, द डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू बी इंटरप्रेटेड हैज टू बी रेड इन एंटायरिटी। सो a headline could be one, a caption could be one, the content could be other. Supposing the headline says that this is a contract for sale or a sale deed, but if the content of the entire document talk about a kirayanama, would that be called a sale deed? No. The document has to be read in entirety. Likewise, when each chapter of the Constitution is illustrated with a picture, and the Constitution at the end of it is signed by every member of the Constituent Assembly, उन चित्रों की एक sanctity तो है। और I wish every word that Gill Sahab said was a part of the Constitution resolution in some format, so that it could inspire people कि यदि बनना है तो कृष्ण जैसा डिटैचमेंट रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जो यात्रा दर्शाते हैं सिखिज्म की, गुरु नानक के आध्यात्म से लेकर धर्म की रक्षा के लिए, वो सब हो। लेकिन आई नाउ वांट टू एड्रेस जस्ट 2-3 इश्यूज। वन इज द क्वेश्चन ऑफ jurisprudence and interpretation of a foundational document like the Constitution. Some of you must be studying jurisprudence, I'm sure. Now, one of the basic principles of jurisprudence is, as I said, one is the law of evidence may be here, a document should be looked at in entirety. You can't make out the meaning of one sentence, cutting it in isolation from the concluding sentence. You have to look at the document in entirety to make any meaning of it. Number two, when the different paragraphs of the same document or different parts of the same constitution, say, are in conflict with each other, which shall prevail? Then you say that you can look at the preamble as a guide for interpretation, because the preamble is not one of the articles. और उसी के ऊपर एक debate है. Different judges of the Supreme Court have opined differently, and if you study the Keshavanand Bharati judgment, it is a treat of information on jurisprudential debate, जिसमें पालकीवाला ने भी आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और भी बहुत बड़े बड़े वकीलों ने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और जजेस ने भी अपने ओपिनियन रखे हैं। एक्सटेंसिव कोटेशंस हैं फ्रॉम British law, American law, etc., etc. On the question of constitutional interpretation, yet another principle of interpreting a constitutional document is not the speeches of Pandit Nehru or Ambedkar. They may have said whatever in their speech. The Supreme Court says, even if a speech is made, a very great speech by Pandit Nehru or Ambedkar, it has very little relevance. Why? Because the Constitution as a document is the one that has been adopted by the Constituent Assembly. And if a great speech has been made by him, me, does the speech by any one of us amount to the opinion of this House? Nothing. A great speech
प्रोफेसर साहब की, इनकी, आप उनमें से कोई पैराग्राफ उठा के क्या कह सकते हो कि वो सदन की राय है? नहीं कह सकते. So therefore the Supreme Court says, when interpreting a document like Constitution, the speeches even of the greatest leaders can only be pointers, not anything definitive. Preamble can also be only a pointer, nothing definitive. And I would add, the pictures are also just pointers, as vague as they can be. The picture is very direct. Now, the interpretation given by Gill Saab, it is very heartwarming for me. But if I were to argue in the court, can I say that it definitively means this? Gill Saab, मैं कह सकता कि उसका अर्थ ये है. There would be somebody disagreeing, and the judge would be giving pronouncements. ठीक है आपकी बात, पर हमने वकील को यही कहना कि यही अर्थ है. Right. तो the question is, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसका अर्थ यही है कि इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है. मैं कह रहा हूं इन सब बातों का जिस तरीके से, तो हमारा जो संविधान है, दैट इज माय पॉइंट. दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. It is like people sitting on a platform wanting to go in different directions, and all the hodgepodge is thrown in together. You keep interpreting and fighting it now. So therefore, you have a great constitution, a written constitution. It says mutually contradictory things here, there, everywhere. The fundamental rights talk about equality of opportunity. Then there is a provision of reservations. Great. Then it says reservation for 10 years. It keeps getting extended. There is the question of freedom of expression, and the First Amendment was subject to reasonable restrictions. So there is freedom of expression, but restricted according to etc. etc. And the word morality comes in an indirect way, subject to public morals and so on. So while it is true now, the constitutional morality is such an important subject. जब गिल साहब ने कहा, जब मैं और प्रमोद जी के, and we were also discussing it, I said it will be great to now, on this question of constitutional morality, Ambedkar ji in one of his speeches in 48 or so talks about constitutional morality. The constitution at 3 or 4 places uses the word moral. Gill Sahab was partly right that the word morality doesn't feature in, but the word moral comes in. Ke subject to public order and subject to morality and public order, constitutional morality, दोनों शब्द साथ कहीं नहीं आते. तो मोरालिटी का अर्थ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक स्पेसिफिक अर्थ है, तो वो नहीं आता है. सो आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू टेकिंग ऑफ फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन. पास्ट प्रेजेंट इतनी बातें हो रही हैं. तो आज जो 26 नवंबर है, क्या है 26? महीना कौन सा है? 26/11 को क्या हुआ था? तो 26/11 हमारे संविधान को याद करने के लिए भी एक मौका है, और 26/11 हमारे देश के नागरिकों के साथ जो मुंबई में हुआ, और उसके पीछे क्या कारण होंगे, उनको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, और भूलना भी नहीं है. तो ये 26/11 मुझे मेरे पिताजी ने रास्ते में याद दिलाया थे, हम गाड़ी में बैठ रहे थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन has to be such, it has to necessarily come with a strong arm and prevent a 26/11 from happening. The resolution on 26/11 ought to be, a 26/11 kind of a thing cannot happen in India. And if my morality leads me to that, then this document is worthwhile. If in spite of this document 26/11s can keep happening, then I'm going wrong somewhere. So now, friends, I want to come to the question of, you've heard professors speak. With all due respect to you, you've extolled the Constitution. You teach the Constitution. Sir has been defending the Constitution as head of the faculty and so on. But my job as a journalist has been, and I'm now, मैं lawyer तो अब बनाऊं, मैंने दंगे कवर करे हैं, मैंने अफगानिस्तान की जंग कवर की है, मैंने इजराइल और पैलेस्टाइन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखी है, 84 के दंगे देखे हैं, लोगों को टायरों से जलता देखा है, रिफ्यूजी कैंप्स में कंबल बांटे हैं,
छात्र आंदोलन की छोटे मोटे नेतृत्व किए हैं, हंसराज प्रेसिडेंट या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रेसिडेंट होने के नाते, और एज अ पत्रकार पॉलिटिशियंस के साथ इंटरेक्ट किया है। मार्गरेट हलवा जी के मीडिया से देखा सरकार कैसे चलती है वगैरह वगैरह, और प्रमोद जी और अपने सब। मेरा सब बहुत अच्छी बात कही गिल साहब ने कि दिल से बात कर रहे हैं। मैं भी दिल से ही बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं इधर माइक के पास आया। मैं अपनी थॉट का फ्लो भी लूज कर रहा हूं। हाँ, विवेकानंद ने कहा है धर्म के बारे में कि कोई बड़े से बड़ा पंडित भी कह लो, वो कहे कि भगवान है कि नहीं है, यदि आप खुद महसूस करते हो तो मानो, नहीं तो ना मानो। टेस्ट एवरीथिंग एट द लेवल ऑफ फैक्ट्स with whatever resources you have, and you people are blessed with resources for scale at which a student in Oxford or Cambridge also 30 years was not available, was not blessed. आपके पास ये है भाई साहब, गूगल है, याहू है, कितने सर्च इंजन हैं। मैंने यदि कोई भी बात कही है, एंड इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू कैन चेक इट आउट, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। और दूसरा, हम सब, एटलीस्ट मैं तो, मेरी दृष्टि उस हद तक सीमित है जिस हद तक मुझे परवरिश मिली, या जो मैंने किताबें पढ़ी, या जब मैंने वो किताबें पढ़ी मुझे जो समझाया गया। हर बार मैं हर चीज नहीं पढ़ सकता। और मेरी इमीडिएट प्रोवोकेशन है गिल साहब का, मैक्स मुलर का नाम आया था अभी, एज अ ग्रेट स्कॉलर, एज अ ग्रेट इंडोलॉजिस्ट। आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स नेदरलैंड्स में किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं कि एज अ किड, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जैसे गिल साहब ने मैं मैक्स मुलर की किताबें उठा लाया। तो मैक्स मुलर इंडोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ, हिंदुज्म मैंने पढ़ा, और साथ में मैं ये भी देख रहा हूं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े इंडोलॉजिस्ट हुए और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर एक हिकारत की नजरों से देखे जाता रहा है उन लोगों द्वारा भी जो मैक्स मुलर को पढ़ते हैं। आप मैक्स मुलर को इंडोलॉजिस्ट मानते हैं, मैक्स मुलर को पढ़ते हैं, और मैक्स मुलर के पढ़ने के बाद आप में हिंदू धर्म के प्रति कंटेम्प्ट, और मैक्स मुलर हिंदू धर्म के माने जाते हैं। तो इस सवाल को आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जामिन करना चाहा। यूरोप में हिंदुस्तानी 4 थे, एक बंगाली था, उसका नाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको गौर से सुनिएगा, इट आई होप इज इंस्पिरेशनल फॉर यू। उन लोगों ने क्या करा कि भाई ये कौन था मैक्स मुलर, इसने लिखा क्या है, इसके केवल वो किताब मत देखो जो लिखी है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या चिट्ठियां लिखी, अपनी बीवी को क्या लिखी, अपने बच्चों को क्या चिट्ठी लिखी मैक्स मुलर ने, विलियम जोन्स ने क्या लिखा, फलाने ने क्या लिखा। तो उस दौरान 3-4 स्कॉलर्स का, इंक्लूडिंग मैक्स मुलर गिल साहब, एक्सटेंसिव रिसर्च वाज डन बाय दीज 4 यंग स्कॉलर्स, दे वर कॉलेज स्टूडेंट्स देन। तो उन्होंने पाया कि ये जो किताब छप के आई, उस किताब का नाम जानते हैं क्या था? प्लीज राइट इट डाउन, लाइज विद लॉन्ग लेग्स, LIES, लाइज विद लॉन्ग लेग्स, वो झूठ जिनके पैर बहुत लंबे हैं, लाइज विद लॉन्ग लेग्स। मैं यहां पे इसलिए आंसर कि वी ऑल बिकम विक्टिम ऑफ प्रोपेगेंडा, एंड आई हैव सीन, I almost felt that Gill Sahib has also become a victim of the propaganda which I was until I read this book. So in this book, Lies with Long Legs, these scholars, मैं इसके ऑथर का भी नाम बता रहा हूं, 4-5 लोगों ने इकट्ठे लिखी है किताब, मैंने अभी यहां, इनका नाम है प्रोफेसर प्रोडेश आइच, PRODESH प्रोडेश AICH। ये किताब एक्चुअली PDF फॉर्म में अवेलेबल है, और मैं आपको दे भी सकता हूं, आप खुद नेट पे लोकेट कर सकते हैं। और ये किताब ऑथेंटिक इसलिए बिकॉज इसमें एवरीथिंग इज एट्रीब्यूटेड, और वो जो चिट्ठियां निकल के आती हैं, तो उसमें एक ऐसे अंग्रेजी प्रोफेसर थे जो तब सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में हुआ करता, और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड वाज इन कैलकाटा। तो वो आदमी
एक फेल्ड एडवोकेट था, केस वेस उसको मिलता नहीं था, छोटी मोटी उसने वकालत कहीं से कर ली थी, वो खुद ही ये सब कहता है। तो वो किसी राज परिवार के यहाँ पे कोई ट्यूशन का काम मिल गया था, और ट्यूशन का काम राज परिवार में मिलते चलते उसको सिफारिश मिल सकती थी कि हिंदुस्तान में पोस्टिंग मिल जाए। इंडिया वॉज नॉट अ पनिशमेंट पोस्टिंग, इट वॉज अ पोस्टिंग ऑफ रिवॉर्ड, क्योंकि यहां से बहुत करप्शन होता था, बहुत पैसा इंग्लैंड जाता था। तो ये जो आदमी था, अब इंडिया के लिए एलिजिबल कैसे हो, सीवी बनना चाहिए। तो ऐसे तो थोड़ी भाई, आप लोगों को भी अपना सीवी बनाना, केस बिल्डअप करना पड़ता है। तो ये वहां पे इसने अरबिक का स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में, जिसको बहुत सारे हिंदुस्तानी लड़के कहते हैं, मैं चूंकि लंदन में रह चुका हूं, देख चुका हूं, तो SOAS में इसने दाखिला ले लिया और साहब अरबिक पढ़ ली थोड़ी बहुत। वो इतनी भी नहीं थी कि ये इंग्लैंड में ही कोई अरबिक ट्रांसलेट कर पाता। तो उस समय राइस पेपर पे ऊपर लेके आप चीटिंग कर सकते थे, कॉपी कर सकते थे। तो ये कुछ अनुवाद करते थे, राइस पेपर पे अरबिक में लिख के दे जाते थे पास होने के लिए। तो अरबिक लिखनी भी नहीं आती, तो राइस पेपर पे अरबिक में लिख के अपना वो पास करते कराते। तो इनकी वहां बैठे सोच थी कि यदि मुझे अरबिक आ गई तो मैं हिंदुस्तान की पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। आप मानिए, मैं BBC में भी काम कर चुका हूं, जो बड़े होते हैं, आप फ्लाई ओवर बांग्लादेश एंड दे थिंक यू आर एन एक्सपर्ट ऑन बांग्लादेश। Those who are introduced in the Western channels, they're expert on India, they may have barely come to India for a day or two. So anyway, the British administration system there, somebody felt, अच्छा इनको अरबिक आती है, तो अरबिक इज क्लोज टू उर्दू, पर्शियन, तो हिंदुस्तान जाने लायक हैं। तो अरबिक के ज्ञान के आधार पर उनको सब पोस्टिंग मिल गई एज अ जज इन दी कोर्ट इन बंगाल। फिर वो चिट्ठियां लिखते हैं अपनी पत्नी को कि अब मुझे मिल गई है, इतने पाउंड मुझे मिलते हैं, मेरा महीने का या साल का मकान का किराया इतना, कुल इतना है, इतना बंगला है, इतने पैसे बचेंगे, और मैंने अब वेदों पे काम शुरू कर दिया है, और जब तक और मैंने कोई पंडित अच्छे ढूंढ लिए, वो मेरे लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और जब तक मेरी किताब खत्म होगी ये वेदों को पढ़ने वाले नहीं होंगे। मैक्स मुलर दूसरा है, ये तो मैं किसी अलग सुप्रीम कोर्ट, मैक्स मुलर को स्कॉलरशिप मिली साहब हिंदुस्तान आने के लिए। आप चेक करिएगा, मैक्स मुलर स्कॉलरशिप SOAS, टेम्पल्टन, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है टेम्पल्टन यूनिवर्सिटी, जहां पे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन और ये सब चीजें स्टडी की जाती है, टेम्पल्टन यूनिवर्सिटी। तो वो टेम्पल्टन यूनिवर्सिटी की कोई एड था, वो इश्तार क्या था, 500 पाउंड का वजीफा था सालाना। 500 पाउंड तक बहुत होते थे, कि इस वजीफे के लिए हम स्कॉलर्स ढूंढ रहे हैं यूरोप में और इंग्लैंड, जो भारत जाके भारत की स्टडी करेंगे एंड जो एस्टैब्लिश करेंगे कि इंडिक रिलीजन्स आर नथिंग कंपेयर टू क्रिश्चियनिटी। जिस स्कॉलरशिप के इश्तार में PhD का कंक्लूजन लिखा हो, अब वो स्कॉलर है या पेड मरासी है, मरासी कहने होती पंजाबी, जो डिंडोरा पीटने वाले होते हैं, इनको हम स्कॉलर मानेंगे कि नहीं। तो मैक्स मुलर, विलियम जॉन्स ऐसे स्कॉलर बन गए। तो प्रोफेसर आइडिश लिखते हैं, आई जस्ट कोट यू 2 पैराग्राफ्स, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्कॉलरशिप। इफ योर स्कॉलरशिप इज फैक्चुअली वीक, योर कंक्लूजन विल हैव नो मीनिंग। इट सेज, ये प्रोफेसर आइडिश अपनी उसका किताब के बारे में आ रहा है, द सर्कमस्टेंस अंडर विच दीज इंडोलॉजिस्ट ईदर केम टू इंडिया और टुक अप स्टडिंग इंडिया is worth noting. Almost every scholar examined in the book, जिस किताब का मैंने जिक्र किया है, almost every scholar examined in the book was driven not by a hunger for scholarship, but something else. They all were desperate to better their own financial situations. ये scholar नहीं थे. Writing was popular during that time, and almost every other field was taken. Oriental studies, quote unquote, was nascent and emerging. The budding Indologists sensed their chance to strike big here, knowing there would be hardly anyone to put their work to test. और भी कोई जानने वाले नहीं थे वहां पे इंग्लैंड में. The Jesuit influence on the scholars and visiting luminaries like Macaulay meant that the supremacist tendencies held Indic beliefs, knowledge in contempt, declaring them wrong and invalid. The Indians had to be introduced to the correct belief system and saved from catastrophe.
तो ये जो सारा जो है, जो इंडोलॉजी जो थी, अब क्या है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स की बात होती है, इंटरप्रिटेशन की बात होती है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो स्पीकर्स भी रहे थे, मैं बस बात खत्म करता हूं, मैं देखना आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, बस 30 सेकंड और। ये अपना सेशन तो चलते रहेंगे आगे। जी बस मैं 30 सेकंड में, थोड़ी है, नहीं मैं 30, नहीं आ रहा है। हाँ आपने जो विषय लिया है उस पर एक बार और सेशन होना पड़ेगा। नहीं बस मैं खत्म कर, वो रिसर्च करवाई किन्होंने थी, ये बात खत्म करके अगला उसकी अगली रिसर्च में बता देंगे आपको किन्होंने करवाई थी। जी बस मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में भी जब लोगों ने लॉ पर बोला, प्लीज रिमेंबर ये केवल लॉयर्स ही नहीं थे, पॉलिटिशियंस थे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। जैसे आज अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिक्योर रहने के लिए, सो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली were also guided by various multiple objectives that had to be catered, and the constitution is a net result, a document of where it influences. Thank you. चलिए देखिए, यहाँ चर्चा से कुछ नई बातें सामने होती है। आपके सामने कुछ पक्ष आए होंगे कि एक व्यक्ति को समझना है तो उसके किस किस सोर्सेज को आप ध्यान, और आज भी आपके सामने कुछ नई चीजें खड़ी हो गई होगी